Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, in the last video session, we went through letter writing along with its parts and formats. Today in this video lecture, we will go through application writing. And first I will tell you the parts of application and then we will go through the format of application. So here you go with the application parts. Here you are. These are the parts of application. There are 10 different parts of application. First part is name of recipients, the one you are writing to. वो शख्स जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसे हम recipients कहते हैं. तो यहाँ उस पर्सन का नाम आएगा name of recipients में. And then the second part is एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट. और ये बात आपको पता है कि जब भी हमें लाइन स्किप करनी होती है तो मैं दो ब्लू लाइंस ड्रॉ करता हूं आपको रिमाइंड कराने के लिए कि हमें यहां लाइन स्किप करनी है. सो आफ्टर एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट इट इज आफ्टर द सेकंड पार्ट ऑफ एप्लीकेशन वी विल स्किप वन लाइन एंड देन थर्ड पार्ट इज सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल स्किप वन लाइन अगेन. Before subject we are skipping one line, after subject we are skipping one line. Mind it, जब आप parts of application लिख रहे हैं उस वक्त भी आप ये लाइन स्किप करेंगे. जब आप format of application लिखेंगे तब भी एक लाइन स्किप करेंगे और जब आप proper application लिखेंगे जब भी ये लाइंस स्किप करेंगे. So you understand, you have to skip lines over here before subject and after subject. Part number 4 is salutation. Salutation के बाद number 5 is introduction, and then we have number 6 body, और body के बाद part number 7 is conclusion. Body के बाद part number 7 है closing. Closing के बाद एक लाइन आप skip करेंगे और skip करने के बाद फिर ending लिखेंगे. ठीक है. क्लोजिंग और एंडिंग में लेटर राइटिंग में भी एक लाइन स्किप थी और एप्लीकेशन राइटिंग में भी एक लाइन हम स्किप करते हैं. द नंबर 8 इज एंडिंग, 9th इज नेम ऑफ एप्लीकेंट्स यानी कि लिखने वाले का नाम. नाम में हम ऑब्वियसली एबीसी या एक्सवाईजेड लिखते हैं. नंबर 10th इज डेट्स. आपको याद होगा कि लेटर राइटिंग में मैंने आपको डेट सेकंड पार्ट में लिखवाई थी. एड्रेस ऑफ राइटर के बाद डेट लिखवाई थी. लेटर राइटिंग में डेट ऊपर आती है, एप्लीकेशन राइटिंग में डेट सबसे लास्ट में आती है. So these are 10 parts of application you need to go through. You need to skip the lines where I have skipped the lines. Now you may pause the video here. You may copy it down, but before copying down, mind it that you have to mention both the dates, English and Islamic dates, and you have to draw two margin lines, one on the left hand side, one on the right hand side, and then you will start over. कॉम्पोजिशन की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी ये काम कॉम्पोजिशन सेक्शन में कर रहे हैं जहां पर आपने लेटर राइटिंग की है. आप फर्स्ट लाइन में पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन की हेडिंग देंगे और उसके बाद ये 10 पार्ट्स लिखेंगे. 13 लाइंस में ही आएंगी. 10 पार्ट्स हो गए और 3 लाइंस आपने स्किप की हुई हैं. ये लाइंस स्किप जरूर करेंगे. सब्जेक्ट से पहले एक लाइन स्किप करनी है, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन स्किप करनी है और क्लोजिंग और एंडिंग के दरमियान एक लाइन स्किप करनी है. You may write down these 10 parts of application. You may pause the video here. After you have written all these 10 parts of application, you may resume the video. I will be sharing with you how to write the format of this application. Here is the format of application. All 10 parts covered here. The first part was name of recipients. जिसको लिखी जा रही है एप्लीकेशन उसका नाम यानी कि वो कौन है. आप इनमें से किसी को भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं. द हेडमास्टर लिख सकते हैं या द प्रिंसिपल लिख सकते हैं या द क्लास टीचर लिख सकते हैं. कोई एक नाम इनमें से आएगा और उसके बाद कॉमा लगेगा. यू कैन सी आई हैव यूज्ड ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स विद ब्लू so that it should be conspicuous, apparent and very clear to you all that where you have to use which punctuation. Punctuation marks बहुत important होते हैं.
कॉम्पोजिशन में, चाहे वो एप्लीकेशन राइटिंग हो या लेटर राइटिंग हो, कॉम्पोजिशन में पंक्चुएशन के अपने मार्क्स होते हैं. अगर गलत पंक्चुएशन यूज करेंगे मार्क्स कट जाएंगे. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. The headmaster or the principal or the class teacher, comma, A dot, B dot, C dot, school, comma. You can see I have written headmaster with capital H, principal with capital P, class teacher with capital C and G. Same as I have written capital A dot, B dot, C dot and school with capital S. And Karachi is already a proper noun, so we always use proper noun with capital letter. So Karachi is a proper noun starting with a capital letter K and then full stop. Then you will skip one line over here. You can clearly see on the board here that I have left or skipped one line here. और वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि मैंने इस एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट के बाद सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद एक लाइन स्किप की है. This is what I told you when we were writing through parts of application. जब parts of application लिख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद लाइन स्किप करते हैं. Then we will start salutation. उसके बाद salutation स्टार्ट करेंगे. And there is respected sir. Salutation क्या होता है? I told you earlier in letter writing. Salutation का मतलब है, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली उर्दू में बात करें तो अल्फाज तखातुब यानी कि किसी को मुखातिब करने के अल्फाज. जब भी हम किसी को मुखातिब करते हैं तो उसको हम लेटर में किस तरह मुखातिब करते हैं और एप्लीकेशन में कैसे मुखातिब करते हैं. यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस. लेटर में हम लिखते हैं डियर और एप्लीकेशन में हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड. दिस इज द डिफरेंस बिकॉज यू आर राइटिंग टू डिफरेंट थिंग्स इन कॉम्पोजिशन टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल. हम लेटर वहां पर जानने वालों को लिख रहे होते हैं. एप्लीकेशन हम हमेशा उसे लिखते हैं जो हमारे लिए मोहतरम होता है, बाइस एहतराम होता है, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं, उसको एप्लीकेशन लिखते हैं. इसीलिए हमने रिस्पेक्टेड सर कॉमा का इस्तेमाल किया है यहाँ पर. सैल्यूटेशन के बाद आपका है इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं? दिस इज x डॉट y डॉट z डॉट. आप अपना यहाँ नाम लिखते हैं x y z में. लेकिन चूंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन लेटर राइटिंग कि हम जब स्कूल लेवल पर लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग करते हैं तो ना तो हम स्कूल का नाम कभी मेंशन करते हैं ना अपना नाम कभी मेंशन करते हैं. दिस इज द रूल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑन स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल कि जब भी हम एकेडमिक रीजन के लिए एप्लीकेशन या लेटर लिखेंगे हम अपना और नाम भी और अपने स्कूल का नाम भी या इंस्टीट्यूशन का नाम कभी भी यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह हम इंस्टीट्यूशन के नेम की जगह a डॉट b डॉट c डॉट लगाते हैं और अपने नाम की जगह x डॉट y डॉट z डॉट लगाते हैं. सो यू कैन सी इंट्रोडक्शन इज गोइंग ऑन. दिस इज xyz. I am a student of class 8 a b c or whatsoever in this school. यहाँ स्कूल पर ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. आपने इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी स्टार्ट करनी है. अमूमन ये देखिए मैंने आपको लेटर राइटिंग में ही बताया था कि कॉमन एरर्स होते हैं. उन कॉमन एरर्स को आपको अवॉइड करना है. तो जो इंस्ट्रक्शंस मैं लेटर राइटिंग में या एप्लीकेशन राइटिंग में दे रहा हूं, यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स वेरी केयरफुली व्हेन यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन और अ लेटर. जब भी आप लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे होंगे आपको इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना है. ये कॉमन एरर्स अवॉइड करने हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके. यहाँ स्कूल के बाद डॉट आ गया, फुल स्टॉप आ गया, पैराग्राफ खत्म हो गया. अब ये एक लाइन में आए, दो लाइन में आए, ये वाला इंट्रोडक्शन. जितनी भी लाइंस में आए आपको आई विश टू हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, ये जो नया पैराग्राफ है जो कि बॉडी कहलाता है एप्लीकेशन में, ये आप स्कूल के बाद से स्टार्ट नहीं करेंगे. यू कैन सी आई हैव लेफ्ट स्पेस ओवर हियर मेंशनिंग दैट आई हैव चेंज्ड द पैराग्राफ. मैंने यहाँ जगह इसीलिए छोड़ी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि देखें यहां से मैंने कंटिन्यू नहीं किया. इन दिस स्कूल के बाद आपने पैराग्राफ चेंज करना होता है. ठीक है. ये नया पैराग्राफ है बॉडी. आई विश टू हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली. ये सब कुछ फिक्स्ड है. आपको जो एडप्ट करना है वो सब्जेक्ट में एडप्ट करना है और बॉडी में एडप्ट करना है. अब जो भी आपका रीजन है एप्लीकेशन लिखने का वो आप यहां पर 2 से 3 सेंटेंसेस में बयान कर देंगे. देयर इज more than enough on 8th grade level
8 ग्रेड वालों के लिए, 8 क्लास वालों के लिए इस जगह पर 2 से 3 सेंटेंसेस लिखना, रीजन लिखना एप्लीकेशन में इनफ है। ठीक है, जब आपका रीजन कंप्लीट हो जाएगा, जिस भी रीजन के लिए आप लिख रहे हैं, आपका रीजन कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहां फुल स्टॉप डाल देंगे, उसके बाद आप दोबारा से पैराग्राफ चेंज करेंगे और देखें नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। आई लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड कंसिडरेशन एंड अप्रूवल, फुल स्टॉप, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। याद रखिएगा, अमूमन स्टूडेंट्स एक और मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक है ग्रेटफुल की स्पेलिंग, GRATEFUL, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रेटफुल, लेकिन स्टूडेंट अमूमन लिखते हैं GREATFUL, व्हिच इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। GREATFUL, this word does not exist in English language. English language में GREATFUL ये word exist ही नहीं करता है। So be very meticulous about it, very careful about it. When you're writing the word grateful, you have to be very careful about writing GRATEFUL, grateful, instead of writing GREATFUL. Is that clear to you all? बात मेरी समझ में आई कि ग्रेटफुल की स्पेलिंग GREATFUL नहीं होगी, GRATEFUL ग्रेटफुल होगी। उसके बाद आप देखिए क्लोजिंग है आपकी ना, I look forward to your kind consideration and approval, I will be highly grateful to you for this act of kindness। इसके बाद आप एक लाइन स्किप करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग और एंडिंग के दरमियान एक लाइन स्किप होती है, और फिर फ्रॉम हाफ ऑफ द पेज आप एंडिंग यू स्टार्ट करेंगे, हाफ ऑफ द पेज। यू कैन सी the half of my page starting from here, yours obediently, yours में देखें कोई apostrophe का इस्तेमाल नहीं है, YOUR apostrophe S। अमूमन ये भी एक कॉमन एरर है, लोग लिखते हैं YOUR apostrophe S। Let me tell you, YOUR apostrophe S, this word also does not exist in English language। English language ये नहीं कह रहा, सुन लीजिए गौर से, कि नहीं वो कोई दूसरा वर्ड होता है, मैं तो कह रहा हूं कि YOUR apostrophe S, ये yours जो है apostrophe के साथ, ये इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। So be very careful about this also। This yours is possessive pronoun, you already have studied about possessive pronouns। you का possessive pronoun होता है yours, clear? ये वही possessive pronoun हमने यहाँ यूज किया, yours। yours obediently, this is obediently, mind the spelling and the word, it's not obedient, it's obediently, adverb, yours obediently, comma, x dot, y dot, z dot, और उसके बाद next line में new line में updated, colon 1st January, comma 2021, again I'm telling you, here we always use the dates, we always use the date in ordinal numbers, not in cardinal numbers। हम डेट हमेशा ordinal numbers में लिखते हैं, cardinal number में नहीं लिखते। and you know it very well, ordinal numbers क्या होते हैं और cardinal numbers क्या होते हैं। first, second, third, fourth, fifth ये ordinal numbers हैं, 1 2 3 4 5 ये cardinal numbers हैं। डेट हमेशा ordinal यानी कि order वाले numbers में लिखी जाती है। 1 जनवरी exemplary sample date जो मैंने आपको यहाँ लिखी है। Is that clear? So here you have the format of application in front of you on your screens on the board. I am going to write down the home assignment you have to do along with this format of application. You can see on the board that this is your home assignment. Write down this home assignment in your diaries, everybody, right now. Pause the video here and write down this assignment in your diary so that you can remember what homework you were given on this date. Write application to the headmaster requesting him to allow your class to visit science exhibition। हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी क्लास को साइंस एग्जीबिशन विजिट करने की वो इजाजत दे दें। What you have to do is you will write the headmaster, comma A.B.C. comma कराची full stop, लाइन स्किप करेंगे, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट for visiting science exhibition, request for visiting science exhibition, line skip करेंगे, respected sir, this is XYZ, I am student of class 8 in this school, 8ABC whatever, I wish to humbly request you to kindly, उसके बाद आप यहाँ से कॉपी करेंगे, to kindly allow your को आप obviously R कर देंगे,
to allow our class to visit science exhibition, और उसके बाद आप उसके 2 रीजन लिख दीजिए कि क्यों आपको साइंस एग्जीबिशन में जाना है। 2 जुमलों में 2 रीजन लिख दें। एक तो ये आपको जुमला कंप्लीट करना होगा, एक जुमला ये हो गया, आधा जुमला मैंने यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, आधा आपके क्वेश्चन में मौजूद है। तो ये तो आपको कंप्लीट करना ही नहीं है ना, मतलब आपको खुद तो लिखना नहीं है, बल्कि आपने यहाँ से देख के इसको कंप्लीट कर लिया। काइंडली से आगे कंटिन्यू के अलाउ आर क्लास, योर की जगह आर क्लास, हमारी क्लास को। मैंने जब आपको सवाल लिखा है कि आप अपनी क्लास की बात करें तो आपके लिए मैंने योर लिखा है ना। अब जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो काइंडली अलाउ आवर क्लास टू विजिट साइंस एग्जीबिशन लिखेंगे। उसके बाद 2 रीजंस लिख दें कि आप साइंस एग्जीबिशन क्यों विजिट करना चाहते हैं। ओनली 2 सेंटेंसेस, आपको सिर्फ 2 सेंटेंसेस लिखने हैं होम असाइनमेंट में। उसके बाद ये सारी चीज एज इट इज आएगी, देख सकते हैं आप। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? We will meet again in the next video lecture. Till then, take very good care of yourselves. Stay home, everybody. Stay safe. Stay healthy. We will meet again in the next video lecture. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.